morning, students. This is your biology class and chapter 1 of class 11th. So, first of all, let us understand the meaning of biology. As you are seeing here, that biology, it is consisting of the two words, that is bio and logy. Bio means life or the living organisms, and logy means study of. So we can define biology as the study of life and study of living organisms, or what you can say that biology is the study of life. Now, what is life, or how can you distinguish that whether an object or an organism or whatever is present is living or non-living? So for that we should know that what is life. So life is the property of the living organism, and this property of the living organism, it distinguishes, it differentiates the dead or the non living from the living ones. मीन्स जिसके अंदर लाइफ प्रेजेंट है और जिसके अंदर नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन दिस प्रॉपर्टी वी कैन से दैट द ऑर्गेनिज्म इज लिविंग और द थिंग इज नॉन लिविंग. So in our first chapter, in the first paragraph, what is given, this world is very beautiful and there are lot of beauties and bounties of the nature. So we can say, see that when the leaves they are moving here and there, so the beauty is very beautiful there. And if we talk about the deserts, or we talk about the water lakes, we talk about the migrating birds, and or we talk about the valleys of flowers और द चिरपिंग ऑफ द बर्ड्स, तो हम अपने आसपास के नेचर में क्या देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सीन्स हमें देखने को मिल रही हैं. एंड ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स टुगेदर दे आर लिविंग एंड दे आर फॉर्मिंग अ ग्रुप, and that group of similar organisms is known as population. For example, अगर हम बात करें, if we talk about the human beings, so all the human beings they are forming a population, and when these populations they interact together, so for example there is population of cows, population of buffaloes, of dogs, of human beings, of plants, of mango tree, and all these populations when they interact together, then it forms or they forms the community. So population and communities, populations are interdependent on each other, and in this way they are forming the communities. Now the question is that when we say that the substance or the object is non-living, or when we say that this thing is living, so to differentiate between the living and non-living, these are the some basic criterias. So first is growth, second is metabolism, third is response to stimuli, and fourth is reproduction. So now we will study them in detail one by one. Yes, so we are talking about the distinguishing characters which differentiates the things in or which makes them living or non-living. So what are the characteristics? First one is growth, second one is metabolism, and third is response to stimuli, and fourth is reproduction. So now first of all let us talk about the growth. So these are the basic characteristics of living things: growth, reproduction, then metabolism, and response to stimuli. So now we will study them in detail. What is growth? Growth, it is the characteristics of living organisms. So these are we have just talked that these are the features, or these are the characteristics of living organisms. So now we will study them in detail, and first one is growth, that all living organisms they grow. So whenever there is increase in mass or increase in number of an individual, then we can say that there is growth. Increase in mass means जब उसका जो अमाउंट है, उसके अंदर जो वेट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, या व्हेन द नंबर इज़ इंक्रीजिंग, तो दोनों ही कंडीशंस में हम क्या कहेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो कर रहा है. फॉर एग्जांपल, सी यू नो दैट अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, and when it becomes mature it divides into two amoebas or two daughter cells. So what has happened here that जो अमीबा है वो मेच्योरिटी पर टू इक्वल डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया है, मीन्स इट हैज़ प्रोड्यूस टू डॉटर सेल्स. तो यहाँ पर क्या हुआ? इंक्रीज इन नंबर. सो यहाँ पर ये क्या है? दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद द ग्रोथ.
And second point that is given is that growth is related to increase in mass also. Suppose a living organism who is multicellular, तो वहाँ क्या हो रहा है, उसकी जो सेल्स हैं वो डिवाइड कर रही हैं. वन सेल इज़ डिवाइडिंग, इट इज़ प्रोड्यूसिंग टू सेल्स एंड देन टू आर प्रोड्यूसिंग फोर सेल्स एंड फोर आर प्रोड्यूसिंग एट सेल्स. सो व्हाट इज़ हैपनिंग देयर, दैट देयर इज़ नंबर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स. एंड जब नंबर इंक्रीज हुआ तो जो उनका मास है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. सो वी कैन से दैट ग्रोथ इज रिलेटेड विद इंक्रीज इन मास एज वेल एज इंक्रीज इन नंबर. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, जैसे एज वी आर मल्टी सेलुलर और प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर, एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर. व्हाट हैपन्स, जो ऑलरेडी प्रेजेंट सेल्स हैं वो डिवाइड करती हैं और न्यू सेल्स बॉडी में ऐड हो जाती हैं. फॉर एग्जांपल व्हेन वी वर बोर्न वी वर स्मॉल इन साइज, बट एज वी हैव ग्रॉन, जो है जैसे जैसे हम बड़े होते गए हैं तो हमारा जो बॉडी का साइज़ है वो इंक्रीज़ हुआ. एक्चुअल में कैसे इंक्रीज़ हुआ, व्हाट हैपेंड देयर, बिकॉज द सेल डिवाइडेड, जो ऑलरेडी प्रेजेंट सेल्स हैं वो क्या हो गई हैं, डिवाइड हो गई हैं. अब हम अगर बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट प्लांट्स, इन प्लांट्स सेल डिवीजन अकर्स कॉन्टीन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ. प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं, देखिए बेटा, इफ़ वी डिस्टिंग्विश प्लांट्स एंड एनिमल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर ग्रोथ, तो हम क्या देखते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ ग्रो करते रहते हैं, जबकि जो एनिमल्स हैं उनका जो ग्रोथ है वो क्या होता है, दैट इज़ लिमिटेड अप टू अ सर्टेन एज. देखिए प्लांट है, पीपल ट्री है, नीम ट्री है, बैनियन ट्री है, जब तक उसकी लाइफ है तब तक वो ग्रो करता रहेगा. लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग को ही ले लीजिए, ह्यूमन बीइंग जो है दैट इज़ ऑल्सो सोशल एनिमल. और यहाँ पर क्या है कि जो ग्रोथ ऑफ द बॉडी है दैट इज़ अप टू अ सर्टेन एज, उसके बाद तो सिर्फ क्या होता है, इंक्रीज इन वॉल्यूम होता है, मोटापा बढ़ता है, हाइट इंक्रीज नहीं होती. सो वी कैन से दैट ग्रोथ इन द प्लांट इज़ कॉन्टीन्यूअस एंड दैट इज़ थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन. यहाँ पर लाइफ स्पैन का मीनिंग क्या है बेटा, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है, बर्थ से लेकर के और डेथ तक का जो ड्यूरेशन होता है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, दैट ड्यूरेशन, नेचुरल डेथ, यहाँ पर जो डेथ के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे दैट इज़ नेचुरल डेथ. सो बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक का जो ड्यूरेशन है दैट इज़ कॉल्ड एज लाइफ स्पैन. और प्लांट्स जो हैं अपनी उस पूरी लाइफ स्पैन में क्या करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं. बट जबकि एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम तक ही ग्रो करते हैं. नेक्स्ट इज़ इफ़ वी टॉक अबाउट यूनिसेलुलर का, मैंने अभी आपको बात कर ही दी थी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल अमीबा. अमीबा क्या कर रहा है, इट इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ पैरामीशियम which is also unicellular. What these organisms do, they become mature and they divide into two daughter cells on maturity. तो यहाँ पर जो है सेल डिवाइड कर रही है और डिवाइड होने से जो उनका नंबर है दैट इज़ इंक्रीजिंग. देन इफ़ वी टॉक अबाउट द विट्रो कल्चर, अगर हम बात करें, अगर हम देखना चाहें कि वेदर सेल्स आर डिवाइडिंग और नॉट, तो उसके लिए हम लेबोरेटरी कंडीशंस को देख सकते हैं. लेबोरेटरी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी एक कल्चर प्लेट के अंदर, व्हाट इज़ कल्चर प्लेट, एक डिश इस तरीके की बाउल, जिसे हम पैट्री डिश भी बोल सकते हैं, उसमें हम न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करेंगे. अब ये न्यूट्रिएंट मीडियम क्या है, जिस तरह से हमें वर्क करने के लिए वी आर इन द नीड ऑफ एनर्जी और हमें फूड चाहिए. अब इसी तरह से अगर लेबोरेटरी में हमें सेल्स को मल्टीप्लाई करना है तो हमें उन्हें कुछ एनर्जी के लिए न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करना पड़ता है, यानी ऐसा मीडियम जिसके अंदर न्यूट्रिशन हो. सो व्हाट इज़ डन, अ पैट्री डिश और अ बाउल इज़ टेकन, और जिसको हम क्या कहेंगे साइंस की लैंग्वेज में, वी विल से कल्चर प्लेट. सो व्हाट इज़ डन, दैट कल्चर, इन दैट कल्चर प्लेट व्हाट इज़ डन, in that culture plate what is done, that we will take nutrient medium and then we will add some of the cells. Ab now what will happen, in that nutrient medium these cells they will start multiplying. So we can say that we can grow or we can see or we can observe the multiplication of cells in the vitro culture also. And in your Zoom class I gave you the example of curd.
कि जब आपकी मदर जो है रात को मिल्क रख करके और उसमें जब थोड़ा सा कर्ड ऐड कर देते हैं, इन द मॉर्निंग व्हाट हैपन्स, द होल मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड। वो कैसे हुआ चेंज? बिकॉज जो है at that time when a little amount of curd was added and that curd was having some of the bacterial cells, और वो जो बैक्टीरिया की सेल्स थी जब उन्हें मिल्क में ऐड किया गया, मिल्क उनके लिए एक न्यूट्रिएंट मीडियम का काम कर रहा है, और वो जो बैक्टीरिया की सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई हो गई, और फिर जो उन्होंने पूरे मिल्क को जो है, मिल्क की जो शुगर है उसको यूज़ करके और उसे किस में कन्वर्ट कर दिया, उसे एसिड में कन्वर्ट कर दिया, और फिर जो है जो कर्ड है उसके अंदर जो एसिड प्रेजेंट है दैट इज लैक्टिक एसिड। नाउ सी, just now we have talked that growth is related with the increase in mass and number, but if we say or if we take the example of a mountain को आपने देखा होगा कि माउंटेन जो है वो ग्रो करता है। ग्रो मीन्स उसकी जो हाइट है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और हमने क्या पढ़ा है कि ग्रोथ इज़ द फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो दिस माउंटेन शुड बी कंसिडर्ड एज लिविंग? नो, क्योंकि माउंटेन तो लिविंग है ही नहीं, इट इज़ नॉन लिविंग। तो यहाँ पर हम क्यों कहेंगे, क्योंकि ग्रो तो ये कर रहा है, फिर ये नॉन लिविंग क्यों है? क्योंकि माउंटेन में या हीप ऑफ गार्बेज में, कूड़े का जो ढेर है उस पर अगर आप रोज़ जो है गार्बेज को ऐड करते रहेंगे, व्हाट विल हैपन, द साइज विल इंक्रीज। So in this situation, in actual growth is taking place, but this growth is taking place externally। यहाँ पर जो है ग्रोथ में क्या हो रहा है कि बाहर की तरफ चीज़ें ऐड हो रही हैं। तो जब जो ग्रोथ है यानी जब उसका इंक्रीज़ हो रहा है बट दैट इज़ नॉट इंटरनल, वो एक्सटर्नली हो रहा है, तो उस तरह के ग्रोथ में हम उसे क्या कहेंगे कि दैट इज़ नॉन लिविंग, बिकॉज द एक्यूमुलेशन ऑफ द मटेरियल इज़ टेकिंग प्लेस ऑन द सरफेस, इनसाइड नहीं हो रहा। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, देन द न्यू सेल्स दे आर एडेड इनसाइड द बॉडी। सो ग्रोथ इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक और वन ऑफ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन देखिए बेटा, हम यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि कभी भी हम एक कैरेक्टरिस्टिक देख करके ये नहीं कह सकते कि दिस इज़ लिविंग और दिस इज़ नॉन लिविंग। वी सी मैनी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर हम देखते हैं कि बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है तो हम कहेंगे वो लिविंग है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने माउंटेन की बात की, तो माउंटेन में मैंने कहा कि इट इज़ नॉन लिविंग क्योंकि ग्रोथ एक्सटर्नल है, और ना ही ये रिप्रोड्यूस कर रहा, ना ही ये रेस्पायर कर रहा, ना ही जो है ये रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट कर रहा है। सो दैट्स वाई इट इज़ नॉन लिविंग। सो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू that in growth it is an important feature of all living organisms. There happens increase in mass and number. Then in non-living things material accumulation takes place outside the body, जिसमें हमने mountain की बात की। Whereas in living organisms this growth takes place internally, और जो cells हैं वो divide करती हैं। And plants they continuously grow throughout their life, whereas animals they grow up to a certain age. So this is the first characteristics we have talked about, and the second characteristic of living organisms is reproduction. Now what is reproduction? Reproduction means production of the individuals of its own kind, or the production of the offsprings. Offsprings means young ones, अपने जैसे young ones produce करना क्या कहलाता है? Reproduction. एंड रिप्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, की जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे प्रोड्यूस इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन? इन 10th ऑल्सो वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस, दैट रिप्रोडक्शन इज़ नेसेसरी सो दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे कैन कॉन्टिन्यू देयर स्पीशीज़ और दे कैन कॉन्टिन्यू देयर रेस, ताकि उनकी जो जाति है वो आगे बढ़ती रहे। सपोज देर विल बी नो रिप्रोडक्शन, तो वॉट एवर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस they will become old and on one day they will die and there will be no such kind of living organisms on the earth। तो क्या ज़रूरी है कि उनकी जो जाति है वो धरती से एक्सटिंक्ट ना हो। what is necessary that there should be reproduction। So this reproduction, it is one of the defining characteristic of the living organisms. And now if we talk about the types of reproduction, there are two kinds of reproduction, sexual reproduction and asexual reproduction. See, when we talk about this asexual mode of reproduction, then we define it or we categorize this type of reproduction into many kinds. For example, if we take the example of a fungi or a fungus,
फंगस का अगर हम एक एग्जांपल लें जो आपने 10th में भी पढ़ा है, दैट इज़ ब्रेड मोल्ड और राइजोपस, ठीक है। तो राइजोपस जो है या जिसको हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, ये एक फंगस है, फंजाई है। एंड व्हाट हैपन्स, दिस फंजाई इट ग्रोज ऑन अ ब्रेड। किस तरह से ग्रो करेगी? स्पोर्स जो कि एयर में प्रेजेंट होंगे। मेनली यहाँ पर क्या वर्ड आई एम यूजिंग? स्पोर्स। स्पोर्स विल बी आर प्रोड्यूस इन द दे आर प्रेजेंट इन द नेचर एंड व्हेन दीज स्पोर्स दे फॉल ऑन द ब्रेड, वो ब्रेड पर फॉल कर जाते हैं, ब्रेड से उनको एनर्जी मिलती है, मीन्स फूड दे आर गेटिंग, एंड नाउ दीज स्पोर्स जर्मिनेट एंड दे फॉर्म अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, and these thread like structures they become straight, they bear such kind of structure जो कि हमने 10th में भी पढ़ा है, and there are small round bodies which are known as spores। तो हमने क्या पढ़ा बेटा कि जो स्पोर एयर में प्रेजेंट थे, वो किसी सूटेबल सबस्ट्रेटम पर फॉल हुए जहाँ से उनको फूड मिला, वो ग्रो कर गए और उन्होंने मैनी स्पोर्स को प्रोड्यूस कर दिया। और मैनी अपने जैसी बॉडी प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। और यहाँ पर जो है वी डिडंट टॉक अबाउट द मेल एंड द फीमेल गैमेट, वी सिंपली सेड दैट स्पोर्स आर प्रेजेंट इन द एयर। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसका जो फर्स्ट काइंड है दैट इज़ रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। Now if we take the second example is that is yeast and hydra, they reproduce by budding। So first of all let us understand the meaning of bud। bud का मतलब होता है, bud means lateral outgrowth, lateral outgrowth present on the body of an organism। So here we have taken the example of hydra and yeast। These are the small organisms or the simpler organisms। This is the structure of hydra। It has tentacles, and when this hydra it becomes mature, it produces a lateral outgrowth, and this is called as bud। and when this bud becomes mature, it produces the tentacles। so what has happened? one body has produced one another hydra। और किस तरीके से प्रोड्यूस हुआ? by producing the bud। so this is called as budding in hydra। one more example is given, that is budding in yeast। नाउ इन यीस्ट व्हाट हैपन्स, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ यीस्ट। ये जो बेकरी वाले होते हैं उन सब के पास जो वो ब्रेड बनाते हैं, सो दे यूज़ द यीस्ट। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ यीस्ट राउंडेड बॉडीज़ हैं ये। दीज यीस्ट व्हेन दे बिकम मेच्योर दे प्रोड्यूसेस एन आउटग्रोथ। उस आउटग्रोथ को हम क्या बोलेंगे? बड बोलेंगे। नाउ दिस बड विल बिकम मेच्योर, it will produce one more bud, and in this way many yeast are produced। so this is also a kind of asexual reproduction और उसका नाम क्या है? budding। then third example of asexual reproduction is planaria। see this is the diagram or the picture of planaria। planaria's head, then it is middle piece, and this is tail। so what happens? this planaria it lives in water, and when it becomes mature it breaks into parts। और जितने पार्ट्स में ये ब्रेक हुआ, ये क्या करेगा? इट विल डेवलप इट्स लोस्ट पार्ट्स। यानी दिस इज़ द हेड, तो ये क्या डेवलप कर लेगा? इट विल डेवलप मिडल पीस एंड टेल। दिस इज़ द मिडल पीस, सो इट विल डेवलप हेड एंड टेल, एंड दिस इज़ द टेल, सो इट विल डेवलप मिडल पीस एंड head। so in this way what we have seen that one planaria has produced three planarias। और यहाँ पर हमने we have not talked about the gametes, male and female gametes, so it is a kind of asexual reproduction। and what is the meaning of regeneration? Re means again, generation means produce, to produce again। so what planaria did? it has produced its lost parts again। so this is a kind of asexual reproduction and example is planaria। now some unicellular organisms like bacteria and unicellular algas। देखिए बेटा alga जो हैं वो unicellular भी होती हैं, multicellular भी होती हैं, but here we are talking about the unicellular alga और some of the bacterias और amoeba। यहाँ पर जो reproduction है that is related to growth। क्या हो रहा है? क्योंकि जैसे ही वो ग्रो किया, मैच्योर हुआ, उन्होंने क्या कर दिया? 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कर दी। सो यहाँ पर जो ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है वो क्या है? आपस में रिलेटेड है। सो दिस इज़ अबाउट द रिप्रोडक्शन।
and we have talked about asexual reproduction. And about sexual reproduction, we know that two parents, they will be involved, two gametes will be produced by the body, male gametes and female gamete, and there will be fertilization, and then the organism will be formed. So this reproduction, इट इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. और हमने पढ़ लिया कि क्या ज़रूरत है रिप्रोडक्शन की, टू कंटिन्यू द रेस. नाउ देयर इज़ गिवन वन मोर थिंग, दैट इफ़ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ कि क्या सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो फर्टाइल होते हैं. नो, some of the conditions are there. For example, if we talk about the infertile couples, means some of the human beings, they are not able to produce their young ones, and that is because of any of the reason they are not able to reproduce. So here they are living because they have some other characteristics, like they are growing, they are respiring, but they are not able to reproduce. तो हम कभी भी एक कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी चीज़ को लिविंग या नॉन लिविंग नहीं कह सकते, है ना. Now one more example they have given in your NCERT book, that is about, they have talked about the mule. What is mule? Mule is a hybrid variety of horse and ass. एक hybrid variety है. And what is special about this animal, that this animal, it is used in this hilly areas to carry the heavy loads or to carry the passengers. Whenever you visit to hilly stations, you might have observed some of the म्यूल्स जो कि लोगों को बिठा कर ले जा रहे होते हैं या सामान ढो रहे होते हैं. इन एक्चुअल इट इज़ अ हाइब्रिड वेराइटी, एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हॉर्स एंड एस. और इस एनिमल की क्या स्पेशलिटी है, दैट इट इज़ स्टेराइल. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टेराइल? स्टेराइल मीन्स द ऑर्गेनिज्म विच इज़ नॉट एबल टू प्रोड्यूस द यंग वन. सो जो ये म्यूल है ये अपने यंग वन प्रोड्यूस नहीं कर सकता. सो यहाँ पर ये नहीं है कि म्यूल जो है वो नॉन लिविंग है, इट इज़ लिविंग, क्योंकि इट इज़ शोइंग अदर कैरेक्टर्स. सिर्फ एक ही कैरेक्टर शो नहीं कर रहा कि इट इज़ नॉट एबल टू प्रोड्यूस द यंग वंस. देन मीन्स हमने इनफर्टाइल कपल की बात की, हमने म्यूल की बात की. एंड वन मोर एग्जाम्पल इज ऑल्सो गिवन, दैट इज़ ऑफ वर्कर बीज. हनी बी आप सभी ने सुना होगा, दे लिव इन हाइव, जो उनका हाउस होता है. एंड इन दैट हनी बी हाइव 3 kinds ऑफ बीज लिव. वन टाइप इज़ क्वीन, अदर वन इज़ वर्कर बीज, एंड वन इज़ मेल. So these worker bees, they are not able to lay the eggs. तो यानी यहाँ पर जो ये वर्कर बीज हैं ये भी क्या है, स्टेराइल. तो they are not able to lay the eggs, but they are living because they are showing some other characters also. So we have talked about the second characteristics of living organism, that is reproduction. Now the third characteristic of living organism, it is metabolism. Now what is metabolism? See, in the body of all living organisms, some chemicals are always being formed, because body is made of chemicals, and these chemicals, they may be small, big, or they may be of various size, and they may be performing different functions. So all these chemicals together, they are called as biomolecules. Why they are called as biomolecules? Because they are present in the body of living organisms. तो वो molecules जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में प्रेजेंट हैं उनको हम क्या बोलेंगे, बायोमोलिक्यूल्स. नाउ दीज बायोमोलिक्यूल्स क्या होगा, दे आर कन्वर्टेड. कोई किसी चीज़ में फॉर्म कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं. ठीक है, तो यानी कि बॉडी के अंदर केमिकल्स बन रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं. और जब इस तरह से बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन साइमल्टेनियसली बॉडी में हो रहे हैं फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, चाहे वो बॉडी प्लांट की है, वेदर इट इज़ ऑफ एनिमल्स, फंजाई और सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी शोइंग मेटाबॉलिज्म. एंड व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म? वेरियस केमिकल रिएक्शंस विच आर टेकिंग प्लेस इन द बॉडी. कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है वो मेटाबॉलिज्म शो नहीं करता. ठीक है, अगर हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस की बात करें आउटसाइड द बॉडी, अगर सपोज यू से दैट मैम इफ़ वी परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट or if we do any chemical reaction in the laboratory conditions in a test tube, तो आप उसे क्या कहेंगे, लिविंग और नॉन लिविंग? क्योंकि वहाँ पर अब हम उसे क्या करवा रहे हैं, आउटसाइड द बॉडी करवा रहे हैं. सो एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन ए टेस्ट ट्यूब इज़ नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग. ठीक है, सो मेटाबॉलिज्म जो है, क्योंकि जो बॉडी के अंदर हो रहा है
वहाँ पर केमिकल रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो रही हैं, देन वी विल से दैट इट इज़ द मेटाबॉलिक रिएक्शन एंड इट इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और देखिए बेटा, मेटाबॉलिज्म को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, वन इज़ एनाबॉलिज्म एंड अदर इज़ कैटाबॉलिज्म। क्या मतलब है दोनों का? मेटाबॉलिज्म मतलब तो केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस में न्यू बॉन्ड्स जो हैं वो फॉर्म होती हैं, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होती हैं, यानी पुरानी सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन भी हो सकते हैं, नए फॉर्म भी हो सकते हैं। सो वेन एवर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म, then that type of reaction is called as anabolism, and when the old substances are broken down, that type of reaction is called as catabolism. Means जब substances break होंगे catabolism, when substances are formed it is called as anabolism. And the sum of this anabolism and catabolism, क्योंकि कुछ form हो रहा है तो कुछ break हो रहा है, that sum together is called as metabolism. And these metabolic activities, they are taking place in the body of living organisms. So this is about our today's class. We have talked about the three characteristics of the living organism, that is growth, then metabolism and reproduction. Rest we will continue in our next class.